ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، فرماؤ آپ کیا حکم ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم سب ٹھیک ہے۔ اور سب ٹھیک ہیں؟ ہاں اللہ کرم سب ٹھیک ہے، کرم اللہ۔ پہچانا آپ نے؟ پیلی جیت سے بول رہا ہوں، عمران نام ہے نا آپ کو؟ عمران میرا نہیں تو حسنین۔ حسنین صاحب، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا مجموعہ ہے حسنین۔ جی کیا بولے؟ دونوں کا جامع ہے حسنین، امام حسن امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی لگاتے ہیں؟ تو بخاری شریف میں لکھا ہے، امام بخاری میں۔ آپ کون سے مطلب کے ہیں؟ دیوبندی مطلب کے ہیں نا؟ ہم امام اہل سنت، امام نہیں اہل نہیں سنت کو مانتے ہیں، امام اہل سنت کی مطلب ہیں۔ اچھا، حضرت آپ کو مانتے ہیں؟ امام اہل سنت تاجدار ولایت حضرت اعلیٰ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اعلیٰ حضرت آپ کو ہم مانتے مانتے ہیں ہیں نا آپ؟ اعلیٰ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلجری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم مانتے ہیں اعلیٰ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم مانتے ہیں اعلیٰ حضرت شیخ محبوب سبحانی پیر لافانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ ہم مانتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، ہم اور مانتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت شاہدانہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، یہ سب حضرات ہیں۔ اور مودی کو کیا مانتے ہیں؟ مودی کو، نریندر مودی کو آپ؟ پردھان منتری ہیں حضرت۔ اور آگے حضرت کے آگے حضرت کہہ سکتے ہیں، حضرت مانے ادب کے ہوتے ہیں۔ حضرت ادب کے؟ جناب مانے اردو میں، ہاں، اور حضرت مانے بھی، اور مان بھی مانے شریمان، یہ ہندی میں ہے۔ حضرت علامہ پردھان منتری مولانا ایسے کر کے یہ صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں کہنے میں، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ کسی کے علامہ اقبال کو بھی کہتے ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کافر کو کیسے کہہ سکتے ہو؟ معنی کے اعتبار سے جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں، جاننے والوں کو علامہ کہہ دیتے ہیں، کوئی نہیں، آپ دین کے ذات علامہ اگر کوئی ہے تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، وہ دین کے عالم ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر مسقلانی ہے، یہ دین کے علامہ ہے۔ ابھی ہیں کہاں؟ ابھی ہم راجستھان میں کوٹا کے پاس، یہ فیس والی میں۔ اچھا، یہاں پر اپنی کو لگائی ہے محفل؟ محفل لگائے ہوئے بیٹھے ہو کیا؟ ہمارا مرید ہیں یہاں پر، حاجی، وہ حج کر کے آئے، حاجی صاحب ہیں۔ مرید کس کے ہیں؟ آپ کے؟ ہاں ہمارا مرید ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا حاجی صاحب؟ جمیل کلو؟ نہیں، صحیح نام کیا ہے؟ کلو بھائی۔ تو نام تو صحیح رکھو، کلو نام تھوڑی ہوتا ہے کوئی۔ کلو نام ہوتا کیوں نہیں ہوتا؟ تو کلو نہیں، کلو کچھ نام رکھوا لو الگ سے، شمس الدین یا جو بھی نام رکھنا ہو۔ نہیں، کلو نام ہوتا تو تم نام پہ کیوں روک لگا رہے ہو؟ کلو نام نہیں ہوتا، نہیں کلو کی حضرت جگہ ہوتا کچھ ہے اور نام رکھ لو۔ کلو کے کوئی معنی نہیں، کلّا کے تو معنی ہے، کلّا معنی ہرگز نہیں، کلو کے کوئی معنی نہیں۔ کلو ہے، الو ہے، یہ تو نام رکھ سکتے ہیں نا۔ ہاں نام بھی اچھے۔ حضرت آپ نے ناشتہ پانی کر لیا؟ ناشتہ پانی کر لیا؟ ناشتہ کریں گے، کھانا کھائیں گے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کی درگاہ پہ کب آ رہے ہیں آپ؟ میں آیا تھا 10-12 بار اس میں آئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا، میں آنے جانا بند ہی کر دیا۔ نہ حضرت امام زین العابدین کا کبھی چرچا کیا، نہ امام باقر کا، نہ امام جعفر، نہ امام موسیٰ کاظم، نہ امام علی رضا، نہ امام تقی، نہ امام نقی، نہ امام ان میں سے کسی ایک کے اوپر آج تک میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 5 منٹ تقریر نہیں سنی میں نے وہاں پر، 5 منٹ تو 2 منٹ نہیں سنی۔ اچھا، 2 منٹ قسم کھا سکتا ہوں میں قرآن ہاتھ میں لے کے۔ کیا بات کرا آپ نے تو کئی بار سنی۔ 2 منٹ ان حضرات پہ تقریر نہیں سنی، جبکہ کتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر، ان کے بیٹے، اور یہ حضرت خواجہ بیناز جو ہیں یہ بیٹے تھوڑی ہیں امام حسین کے، نہ پوتے ہیں نہ پوتے، جب کتنے باپ کے ہیں، اور ان کا پاور دیکھو آپ۔ نہیں اچھا، یہ پاور دیکھو، حضرت خواجہ بیناز کب کے آئے ہیں، یعنی ان کی پشت میں ہے 15ویں پشت میں قریب امام حسین علیہ السلام کی، لیکن پاور دیکھو کتنا ہائی فائی ہے، پورے ہندوستان میں اسلام پھیلا دیا۔ پھر امام زین العابدین تو بہت بڑے ہیں صاحب،
आप अलैहिस्सलाम क्यों लगा रहे हैं? अलैहिस्सलाम इमाम बुखारी ने लिखा है, बुखारी शरीफ में लिखा है अलैहिस्सलाम, एक जगह नहीं कई जगह लिखा है। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम और इमाम हसन, वो पुराने बुजुर्ग लोग बता देंगे। जिनकी उम्र 80 साल है वो यही कहेंगे कि हमारे बाप दादा तो अलैहिस्सलाम ही कहते। नहीं, ये तो और ये कोई मन गलत बात नहीं है कि अपने मन से बचाव के दो। इमाम बुखारी जब जैसे लिख रहे हैं, अपन थोड़ी कह रहे हैं इमाम बुखारी से बड़ा कोई आलिम हुआ ही नहीं हदीस में, वो लिखते हैं इमाम हुसैन का। तो मुझे भी तो बोलने दो हजरत। आप पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी किताबों में तो तालिबीन अलैहिस्सलाम लिखते हैं, उनसे बड़े आलिम हो जाएंगे अपन। और शिया तो उनसे पहले भी थे, खुद पीराने पीर ने शियाओं की किस्में लिखी है, 32 किस्में लिखी है शियाओं की, 32 फिक़े, तो वो खुद अलैहिस्सलाम लिख रहे हैं। तो ये अगर शियाओं की पहचान होती तो पीराने पीर क्यों लिखते नऊज़ुबिल्लाह? इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम एक दो जगह थोड़ी लिखा है, उनकी किताब पढ़ो, उन्हें तालिबी शम्स बरेलवी साहब ने तर्जुमा किया ना। अरे तो आप ही बोल लोगे, मुझे कहाँ बोलने दे रहे हो? बोलो साहब बोलो। अरे तो कितना बोलने वाले हो, आप ही बोलते जा रहे हो। जमाने में अलैहिस्सलाम कहते थे ना बूढ़े लोग अलैहिस्सलाम कहते थे। नहीं, ये जो तस्करा है पुराने लोग, पुराने जमाने हाजी साहब कह रहे हैं कल्लू भाई के पुराने लोग अलैहिस्सलाम ही बोलते थे। अच्छा, आपका जो आपने जो ये बोलते थे ना पुराने लोग पहले के जमाने, किताबों में तो आया हुआ है। हाँ, किताबों में क्या आया है? अलैहिस्सलाम बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ। मेरी बात तो सुनो एक मिनट। ये आज के बड़े आलिम हैं, आज के 14वीं सदी के आलिम बड़े हैं, ये उनसे बड़े। पीराने पीर ने जब लिखा है तो ये मरदूद कौन होते हैं? ये 15वीं सदी के मुल्ले, इनकी मानेंगे मुल्लों की। मेरे सामने आ नहीं पाते मुल्ले। क्या कहते हैं? ये कहते नहीं कहना चाहिए, मतलब ये है कि अलैहिस्सलाम मत कहो, अलैहिस्सलाम मत कहो, खाली रज़ियल्लाहु अन्हु कहो। रज़ियल्लाहु अन्हु तो तुम आज की बोल में कह रहा हूँ, 15वीं सदी के जिन्होंने लूटा मारी की चल गए दुनिया से, उनको रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं। अरे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अलैहिस्सलाम लिखा है। ये तो खैर अभी के हैं, शाह अब्दुल अज़ीम साहब तो 300 साल 250 साल, लेकिन पीराने पीर तो 1000 साल 900 साल वो लिखते हैं। और इनसे पहले इमाम बुखारी ने लिखा। तो ये अलैहिस्सलाम मुस्तस्ना है उस हुक्म से कि अंबिया फरिश्तों के अलावा किसी को अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए। इस हुक्म से ये अलग है, माने जाते हैं अहले बैत। ये 4000 खास तौर से इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा फातिमा, हज़रत अली, तो इनको हम लोग थोड़ी लिख रहे हैं अलैहिस्सलाम। बड़े बड़े इमामों ने, आम लोगों ने नहीं, बड़े बड़े एक दो इमामों ने नहीं, सैकड़ों औलिया किराम ने। इसका मतलब कितनी अजमत थी उनके दिलों में कि वो अलैहिस्सलाम ही लिखते थे। तो ये उनके मर्तबे के हिसाब से है कि उसमें अलैहिस्सलाम कहने में इनका मर्तबा मालूम होता है। रज़ियल्लाहु अन्हु कह देंगे तो ये आम बात हो जाएगी कि आज के मौलवियों को भी रज़ियल्लाहु कह रहे हैं, तो ये इसमें फर्क क्या रहेगा फिर? तो अलैहिस्सलाम ईमान वाला होगा तो फौरन कहेगा अलैहिस्सलाम। अरे जब पीराने पीर जैसे लिख रहा अलैहिस्सलाम। और नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं क्लिप आई है, हज़रत नरेंद्र मोदी साहब वो भी इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं। और इनके मैंने पंडितों के बयान सुने, हिंदू भाइयों के, तो वो भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। हिंदू पंडित भी मैंने सुनी, कई पंडितों का सुनी, तो वो भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब ये सौदागरानी नहीं कहते तो नहीं क्या, इनकी मालूम की तो मंतिकी अलग है, सौदागरानी होगी, सौदागरानी। और बोलिए सौदागरान से गिरानी के दो, सौदा गिरा दिया उसने। ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। ये जो कितना लंच किया है आपने, ये अभी तक कितनी तादाद है इसकी? जी, ये जो नया फितना लॉन्च किया है आपने, कितनी तादाद हो चुकी? अरे तो ख्वाजा गरीब के मानने वाली तादाद तो पूरी दुनिया में है साहब, इसमें नहीं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जो है उन्हें तो मैं भी नहीं, उनका कोई फिरका नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज का कोई फिरका नहीं है। निजामुद्दीन औलिया तो ये सब अहले सुन्नत वल जमात हैं, इसको फिरका नहीं कह सकते। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरकों जो हदीस है ना, उस हदीस की तशरीह में भी बहुत टाइम लगता है, इसलिए में वो समझना पड़ता है कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। तो अब ये समझना है कि वो कौन से फिरके होंगे 72। अब आजकल तो लोग गिना देते ना एक दूसरे को, अब देवबंदी, अब उनके सुन्नी गिनाएंगे देवबंदी को, देवबंदी गिनाएगा सुन्नियों को। अपने आप को ही तो आदमी जन्नती मानेगा, जहन्नमी थोड़ी मानेगा। अब शिया कहेगा हम जन्नती तुम जहन्नमी, अहले हदीस को हदीस पढ़ेगा कहेगा हम जन्नती तुम जहन्नमी। तो ये फिरके का मतलब बस समझ लो आप। 1 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं 1 मिनट लगूंगा बस, 1 मिनट सुनो। कुरान में अल्लाह फरमाता है
वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफ़ा, अल्लाह फरमाता है मोमिनों में ऐसे लोग होना चाहिए, फलौला नफरा मिन कुल्ल फिरक़तिन मिनहुम, हर फिरके में से जाए। अब कुरान तो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ और सहाबा किराम मौजूद हैं, तो अल्लाह फरमा रहा है कि मोमिनों में से जाए, फलौला नफरा मिन कुल्ल फिरक़तिन मिनहुम, हर फिरके में से जाए, ताइफ़तुन यतफ़क़हू फ़िद्दीन, दीन को समझे और हासिल करें, फिर वापस आकर लोगों को डराएं। अब आप माशाल्लाह समझदार, आप समझ जाओगे सहाबा किराम के ज़माने में कौन सा फिरका था जो अल्लाह ने हर फिरके में से जाए। तो वहाँ फिरके से मुराद जो अल्लाह की वो है खानदान है, कबीला है, वो भी देखिए कुरान में है कि हमने तुम्हें बनाया एक मर्द से एक औरत से, या नासु इन्ना खलकनाकुम, मैंने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, वो जालना को शुरू तुमको शुरू में कबाइल में तकसीम किया तारफू, ताकि एक दूसरे का तारुफ करा। ये फिरके से मुराद कबीले हैं कि सहाबा किराम के हर कबीले में से, हर खानदान में से लोग इल्म हासिल करने जाए। आप भी जानते हो उस जमाने में कोई फिरका ही नहीं था, अल्लाह के रसूल के जमाने में कोई फिरका ही नहीं था। यजीद बाद में पैदा हुआ, यजीद तो मरदूद बाद में हुआ है। नहीं, आप अमीनुल कादरी को सुनते हो जी? अमीनुल कादरी साहब को सुनते हो? अमीनुल कादरी तो गप्पे हाँकता हो तो जाने क्या क्या हो, तो उसके तो बेचारे तो चैलेंज देता फिर है, अजा रिस्कुल्ला साहब के मदार पैदा मैं साबित कर दूंगा। तो अरे मैं तो कहता हूँ अमीनुल कादरी मालेरा शरीफ से अगर डॉक्टर सैयद अमीन मिलत मालवी से सनद लिखवा ले बस कि हमारे खानदान का है, वो आले रसूल है भाई, ऐसा अरे तो बिलग्राम से सनद तो लिखवा के लाए सैयद बादशाह मियाँ साहब से या डॉक्टर सैयद अमीन मियाँ से, वो कह दें कि हमारे खानदान का है तो हम भी मान लेंगे आंखें बंद करके। मैं फिर मान लूंगा, मैं भी तकरीर करूंगा कि साहब उन्होंने सनद दे दिए तो हम मान लो, अब उनकी जिम्मेदारी हो गई भाई। ये 2000 से लिखवा ला या है किससे लिखवा ले, या तो मारे के जो सैयद हैं उनसे कह दे कि हमारे आप सनद दे दो, सलमान अजहरी को, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा है। और सलमान अजहरी को वो शेर अहले सुन्नत है, छाए हुए हिंदुस्तान के खतीबुल हिंद हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, चाहिए कि तमाम उर्स में जो उर्स आ रहा भी इसमें अपील हो जाए कि उनके लिए लोग कोशिश कर लें कि साहब इनको बरी करो, तो बेकसूर बेचारों को जरा सी गलती तो थोड़ी उनसे हो गई थी जवानी में, अस्सी में उन्होंने जो कह दिया कुत्तों का दौर आएगा, वो लफ्ज बहुत गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया? क्यों उन्हें कहना था किसी और ढंग से कहना था। अरे नहीं तो किसी का नाम थोड़ी दिया था उन्होंने बात पकड़ ली ना। मुफ्ती सलमान अजहरी पूरे हिंदुस्तान में छा चुके थे। और सुनो, मुफ्ती आजम हिंद के बाद अगर किसी को मकबूलियत मिली है तो किसे मिली है मालूम है? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मिली। कितनी मकबूलियत मिली थी साहब, क्या मेरी बात सुनो, मजमा लग जाता था अल्लाह के करम से। अब तुम्हारे जैसे चाटुकार तो वो है नहीं सलमान अजहरी, नहीं वो अगर वो हमसे बात करें, उनके भाई है ना डॉक्टर जुबेर साहब, वो जो बम्बई में है मौलाना जुबेर अहमद मिर्जाई, मेरा नंबर लिखे 88-152 53-598, मुझसे बात करें पर्सनल अलग में। मैं इंशाल्लाह जैसा भी होगा फिर उनसे अलग में बात करूँ, अभी नहीं कर सकता, अभी जरा मैं फोन पे अभी मैं क्या मैंने नंबर दे दिया, वो मुझसे बात करेंगे फिर मैं बताऊंगा क्या है मामला। तुम जो हो बीजेपी के चाटुकार हो ना, हजरात के जरिए से ये काम हो जाएगा, दुआ के जरिए से। वो हमारे जो है मुरीद हैं उनके सामने मौकिल आते हैं, उनके बेटे के सामने, बहुत बड़ी उम्र है। अच्छा, वो हजरत मदीने शरीफ से आते हैं, मदीने शरीफ से। नहीं तुम उनसे बड़े अलग अलग मौकिल हैं, तो उनसे जब दुआ से हम बोलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा। बहुत भारी मौकिल है, मामूली नहीं, मदीने शरीफ से आते हैं भाई। अरे बहुत ही बड़े मौकिल है। तोबा करो खुदा का तोबा करो, क्या मौकिल दुआ नहीं करेंगे? मौकिल है, ये अल्लाह की मखलूक है, न जिन्नात है न फरिश्ते हैं, सब करेंगे वो। उसमें मौकिलों का लिखे हैं, मौकिल न फरिश्ते होते हैं, न इंसान होते हैं, न जिन्नात होते हैं, ये अल्लाह की मखलूक। क्यों इस बोली पब्लिक नहीं, ये फरिश्ते भी नहीं है, जिन्नात भी नहीं है, ये इंसान भी नहीं है, ये सिर्फ कोई नूरी मखलूक होते हैं। तुम्हारे ऊपर इनकी ड्यूटी है अल्लाह की तरफ से कि ये दुनिया भर में जाए, जो भी अल्लाह का हुक्म होता होगा वो करते हैं। और सुनो आप एक बात सुनो, ये अभी जो झगड़ा चल रहा ताजिए के ऊपर, हशमती रजी का, दोनों ये कह रहे हैं कि हम साबित करेंगे कि ताजिया जायज है, वो कह रहे नहीं याद है मुफ्ती कलीम हनफी साहब। और मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने जो एक बहुत बड़ी वो खतरनाक गलती ये कर दी कि इस पर चैलेंज दे दिया उन्होंने। चैलेंज नहीं देना था, क्योंकि आज हमारे ऊपर मौत खड़ी है सर पे। गैर मुस्लिम कुफ्फार मुशरिकीन हमें निशाना बनाना चाहते हैं और हम आपस में एक दूसरे चैलेंज दे ताज़िए के बाद जो बना रहा बनाएंगे, होने से क्या होगा?
अरे भाई तुम नहीं बना रहे, तुम ना बनाओ, अब जो बना रहा है तो क्यों उसके पीछे पकड़ो, टांग खींचो के मत बनाओ, ये तो आज से थोड़ी बन रहा है, कम से कम सैकड़ों साल हो गए। तो अब अरे इतना तो बड़ा चैलेंज बनाना नहीं देना जाए, था कि हम इसे हराम करार देंगे, तो अब इससे बवंडर तो हो चुका बनाना बहुत जाए बड़ा। वो दूसरी टीम वो शेर हशमती मुफ्ती खुर्शीद अहमद हशमती वो बवांगे झोल सामने आ रहा है कि मैं तो अब मुकाबला करके ही रहूंगा, पीछे नहीं हट रहा। अरे तो बना मुफ्ती कली नहीं बंटी पीछे हट रहा है, ऐसा लग रहा है वो राय फरार अख्तियार कर रहा है, वो नहीं हट रहा, वो हशमती आ गई है सामने बिल्कुल शेर बन के। उसकी अरे वजह बनाना है कि वो जायज तो इमाम नहीं हुसैन है। अलैहिस्सलाम की अजमत की वजह से अरे सामने आया। यार क्यों जो ऐसी बातें कर रहे हो, इमाम हुसैन वो अलैहिस्सलाम मत लगाओ भाई, जो सिया हो, राफजी हो, देवबंदी हो, अच्छा कौन फिर हो ये क्या तुम? इमाम बुखारी को क्या कहोगे, इमाम मलिक पीरान अरे पीर को